morning class. Welcome to the online classes of Shivaji Group of Institutions. Today I will teach you the chapter Tansen the Musical Genius. Last class में भी हमने आपको Tansen the Musical Genius के बारे में बताया था. Today also I will start with Tansen the Musical Genius. In the last class I have taught you till page number 100. 100 में हमने आपको बताया था Last Words to Him. ये हमने यहाँ तक आपको पढ़ाया था. अब इसके आगे से आज कंटिन्यू करते हैं. ठीक है बच्चों, देखिए अपनी बुकों में तानसेन remained at home to look after his mother, but within a year she too died. तानसेन जो थे वो अपनी मम्मी के पास रहे थे. जब उनके फादर को डेथ बेड पे थे, उसके बाद जब वो घर लौटे थे तो तानसेन remained at home to look after his mother, but within a year she too died. लेकिन within a year, लेकिन एक साल के अंदर she too died, जैसे उनका भी देहांत हो गया. ठीक है, उसके बाद तानसेन remained at home to look after his mother, ये हो गया. उसके बाद now तानसेन was free to keep his promise to his father to go to Muhammad Ghaus and be trained by him. अब तानसेन was free to keep his promise. तानसेन जो था वो फ्री हो गया अपने प्रॉमिस को कीप करने के लिए to his father to go to Muhammad Ghaus, ताकि वो मोहम्मद गौस के पास जाए and he be trained by him और उनसे ट्रेनिंग ले. ठीक है, but in keeping with Indian tradition he went to seek permission to learn under a new guru from his first guru Haridas. लेकिन इंडियन कल्चर को मेंटेन करने के लिए इन कीपिंग विद द इंडियन ट्रेडिशन ही वेंट टू सीक परमिशन टू लर्न अंडर अ न्यू गुरु. वो गए नए गुरु के साथ लर्न करने के लिए फ्रॉम हिज फर्स्ट गुरु, अपने फर्स्ट गुरु के साथ से हरिदास. इनका नाम क्या था? हरिदास. You must obey your father's wishes, but you will always be welcome late here. उन्होंने कहा you must obey your father's wishes. तुम्हें अपने फादर्स के विशेष को obey करना चाहिए, लेकिन you are always welcome here. तुम्हें यहाँ पे हमेशा वेलकम किया जाएगा. You are like a son to me. उसने कहा हरिदास ने you are like a son to me, and he gave him his blessing. और उन्होंने उनको अपनी दुआएं भी दी. Tansen studied under the Muhammad Ghaus for 3 years, developing his musical talent. Tansen studied under Muhammad Ghaus. Tansen ने मोहम्मद गौस के अंदर के पास जाकर स्टडी करना शुरू किया. for 3 years, 3 सालों तक उन्होंने स्टडी किया, developing his musical talent. और उन्होंने अपना म्यूजिकल टैलेंट काफी डेवलप कर लिया. ठीक है. During that time, मोहम्मद गौस introduced Tansen to the ruler of Gwalior. उस समय मोहम्मद गौस ने क्या बोलते हैं तानसेन को इंट्रोड्यूस किया to the ruler of Gwalior. ruler of Gwalior के साथ इंट्रोड्यूस किया, इंट्रोडक्शन दिया. They became good friends and Tansen would often visit the ruler's palace where he would listen to other musicians. उसके बाद उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई. They became very good friends and Tansen would often visit the ruler's palace. और तानसेन जो था वो ruler's palace को often visit करता था where he would listen to other musicians, जहाँ पे वो जाके दूसरे musicians को भी सुनता था. ठीक है. उसके बाद देखिए during his visit to the palace, Tansen met Husani, one of the women who attended on the ruler. During his visit to the palace, जब वो पैलेस जा रहे थे, Tansen met Husani. तानसेन ने हुसानी को मेट किया, उनकी सहायता करी. One of the women, जो एक वुमेन थी, एक स्त्री थी, who attended on the ruler, जो अटेंड करती थी रूलर को. ठीक है. Like her name, the beautiful one, Husani was truly beautiful. जैसा कि उनका नाम था हुसानी, वैसे ही वो ब्यूटीफुल भी थी. हुसानी was truly beautiful, जो बहुत ज़्यादा सुंदर भी थी. ठीक है. तानसेन fell in love with her and married her. तानसेन को उनसे प्यार हो गया and married her. और उसके बाद उन्होंने उससे शादी भी कर ली. A few years later, मोहम्मद गौस died. कुछ सालों बाद क्या हुआ? मोहम्मद गौस की मृत्यु हो गई, leaving his property and money to तानसेन. और उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी और मनी जो थी वो तानसेन के नाम पे छोड़ दी. तानसेन settled in मोहम्मद गौस हाउस and his family was raised there. तानसेन जो थे मोहम्मद गौस हाउस में जाकर सेटल हो गए और उनकी फैमिली जो थी वहीं बड़ी होने लगी. One day a messenger arrived from the port of Riva near Gwalior. एक दिन एक मैसेंजर आया पोर्ट ऑफ रीवा से ग्वालियर के पास में, नियर ग्वालियर. The messenger opened the scroll and read. उन्होंने मैसेंजर में अपना स्क्रॉल ओपन किया और रीडिंग करनी स्टार्ट कर दी. King Ramchand of Riva would like you to be a musician at his court.
उसने कहा किंग रामचंद्र ऑफ रीवा, किंग रामचंद्र जो थे रीवा के, वुड लाइक यू टू बी अ म्यूजिशियन एट द कोर्ट, यानी किंग रामचंद्र चाहते हैं रीवा के कि आप जाके उनके दरबार में म्यूजिशियन बन जाए। This was a great honor and the first step in Tansen's rise to fame. This was the great honor, एक बहुत बड़ी बात थी कि तानसेन के लिए अपॉर्चुनिटी उसको मिली कि वो जाके एक राजा के दरबार में गाए, और ये पहला उनका एक मौका था जिससे उनको लोकप्रियता मिली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखते हैं 101 पे, किंग रामचंद्र एडमिटेड तानसेन सिंगिंग एंड लैविश्ड मेनी एक्सपेंसिव गिफ्ट्स ऑन हिम। किंग रामचंद्र ने एडमिट करी तानसेन सिंगिंग को, एडमायर किया, एडमिट किया, एंड लैविश मेनी एक्सपेंसिव गिफ्ट्स टू हिम, और उनको बहुत सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स भी दिए। लैविश मतलब दिए, उनको बहुत सारे महंगे महंगे तोहफे दिए। वंस ही गेव हिम 1000 गोल्ड कॉइंस, एक बार उन्होंने उसको 1000 गोल्ड कॉइन भी दिए। क्या दिए? 1000 गोल्ड कॉइंस भी दिए। ठीक है, उसके बाद देन वन डे द एम्परर अकबर वेंट ऑन अ विजिट टू रीवा। उसके बाद क्या हुआ? वन डे द एम्परर अकबर जो थे वेंट टू द विजिट टू रीवा, वो रीवा में विजिट करने के लिए गए। यानी रामचंद्र ने तानसेन की सिंगिंग को बहुत एडमायर किया, उनके बहुत सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दिए, और उसके बाद 1000 गोल्ड कॉइन्स भी दिए। उसके बाद एक दिन की बात है कि अकबर, राजा अकबर जो थे मुगल बादशाह, वेंट ऑन विजिट टू रीवा, वो रीवा गए। किंग रामचंद्र अरेंज फॉर तानसेन टू एंटरटेन हिज रॉयल गेस्ट। किंग रामचंद्र ने अरेंज किया तानसेन को टू एंटरटेन हिज रॉयल गेस्ट, ताकि वो अपने रॉयल गेस्ट को एंटरटेन कर पाए और उनको कुछ गा के सुना पाए। द एम्परर वाज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय तानसेन्स म्यूजिक। एम्परर जो थे बहुत खुश हो गए बाय तानसेन्स म्यूजिक, एंड सून आफ्टर हिज रिटर्न सेंट अ मैसेज टू रामचंद्र रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड तानसेन टू हिज कोर्ट। उसके बाद जब वो वापस चले गए तो उन्होंने एक मैसेज दिया बादशाह को, रामचंद्र को, कि तानसेन को अपने दरबार में, यानी अकबर के दरबार में भेज दें। ठीक है, किंग रामचंद्र डिड नॉट वांट टू पार्ट विद तानसेन। किंग रामचंद्र जो थे तो तानसेन से अलग नहीं होना चाहते थे, बट ही वुड नॉट अफोर्ड टू डिसप्लीज द पावरफुल अकबर, लेकिन वो अकबर को डिसप्लीज करना भी नहीं चाहते थे क्योंकि अकबर बहुत पावरफुल राजा था। आफ्टर ऑल अकबर वाज द एम्परर ऑफ इंडिया, क्योंकि अकबर वाज एम्परर ऑफ इंडिया एंड रामचंद्र वाज ओनली द किंग ऑफ स्मॉल स्टेट इन अकबर्स एम्पायर, और रामचंद्र जो था वो केवल एक अकबर के एम्पायर में एक छोटा सा राजा था, इसलिए वो अकबर को डिसप्लीज नहीं कर सकता था। सो रिलक्टेंटली किंग रामचंद्र सेंट तानसेन एज अ रॉयल गिफ्ट फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर। इसीलिए उसके बाद फिर किंग रामचंद्र ने एक गिफ्ट की तरीके से तानसेन को सेंड किया फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर, एस्कॉर्टेड बाय हिज ओन मैन, और उनको ओन मैन ने उसको एस्कॉर्ट किया था। तानसेन रिसीव्ड अ रॉयल वेलकम इन द कैपिटल सिटी ऑफ आगरा। तानसेन को एक रॉयल वेलकम मिला इन द कैपिटल सिटी ऑफ आगरा, आगरा में एक रॉयल वेलकम मिला। अकबर वाज सो इम्प्रेस्ड बाय तानसेन्स म्यूजिक दैट ही बेस्टोड ऑन हिम द हाईएस्ट ऑनर ऑफ द लैंड। अकबर इतने ज़्यादा खुश हुए तानसेन के म्यूजिक से कि उन्होंने बेस्टो कर दिया ऑन हिम, मतलब उन्होंने उसको उपाधि दे दी द हाईएस्ट ऑनर ऑफ द लैंड, हाईएस्ट ऑनर ऑफ द लैंड की उपाधि उनको दे दी। बेस्टोड माने क्या होता है? बेस्टोड मीन्स देखिए दिया हुआ है, बेस्टोड मीन्स गिव एज अ गिफ्ट, एक गिफ्ट की तरीके से उन्होंने उसको दिया। उसके बाद दिया हुआ है आगे, अकबर वाज सो इम्प्रेस्ड, की लाइन हो गई है, द तानसेन वाज इंक्लूडेड अमंग हिज नवरत्न 9 ज्वेल्स। तानसेन को उन्होंने अपने 9 ज्वेल्स में, अपने नवरत्न में शामिल कर लिया। एट 9 मोस्ट आउटस्टैंडिंग टैलेंट्स ऑफ द रॉयल कोर्ट, जो 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट टैलेंट्स थे रॉयल कोर्ट के, उसमें उन्होंने अकबर को भी, उसमें उन्होंने तानसेन को भी शामिल कर लिया। Besides performing in the court, Tansen would often sing alone for the emperor. Besides performing in the court में perform करने के अलावा Tansen would often sing alone for the emperor. Tansen जो था वो emperor के लिए भी गाना गाता था। At night he sang ragas that would soothe and help. Night में वो राग गाते थे जिससे soothing, मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता था राजा को और हेल्प मिलती थी। Akbar fall asleep and in the morning Tansen sang special ragas that would gently awaken the Akbar. Akbar fall asleep, अकबर जो थे वो सो जाते थे अपनी रात को सुन के। And in the morning, और सवेरे सवेरे Tansen sang special ragas, Tansen स्पेशल राग गाते थे that would gently awaken the Akbar, जो अकबर को जगाती थी जेंटल तरीके से।
देयर आर मैनी स्टोरीज टोल्ड अबाउट द पावरफुल तानसेन म्यूजिक। बहुत सारी स्टोरीज भी हैं जो पावरफुल म्यूजिशियन तानसेन के बारे में कही जाती हैं। ठीक है, इट इज सेड दैट व्हेन तानसेन sang birds and animals would gather to hear it। ऐसा माना जाता है कि जब तानसेन गाना गाते थे बर्ड्स और एनिमल्स भी गैदर हो जाते थे टू हियर, उनको सुनने के लिए। तानसेन sang and taught in Emperor Akbar's court for many years। तानसेन ने गाना गाया और sang किया अकबर्स कोर्ट में बहुत सालों तक। He was not only a musician but also a poet। तो ना केवल एक म्यूजिशियन थे but also a poet, बल्कि पोएट भी थे। He composed many new ragas। उन्होंने बहुत सारे नए-नए राग भी बनाए। When तानसेन died, जब तानसेन नहीं रहे, Emperor Akbar was at his bedside। तो Emperor Akbar जो थे वो उनके bedside पे थे। The Emperor was filled with great sorrow। Emperor जो था वो great sorrow, उसको बहुत दुख हुआ था जब वो नहीं रहे थे। He knew that India had lost her greatest musician and singer। उनको मालूम चल गया था कि इंडिया ने अपना ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन और सिंगर जो है वो खो दिया। बट तानसेन्स म्यूजिक हैज लिव्ड ऑन एंड बीन पास्ड ऑन फ्रॉम गुरु टू डिसाइपल। लेकिन तानसेन म्यूजिक हमेशा रहा और गुरु से डिसाइपल तक पास होता रहा। एंड एवरी ईयर इन ग्वालियर नियर तानसेन स्टॉर्म अ म्यूजिक फेस्टिवल इज हेल्ड। और एवरी ईयर इन ग्वालियर में तानसेन स्टॉर्म के पास में म्यूजिक फेस्टिवल है, वहाँ पे म्यूजिक फेस्टिवल होता है। म्यूजिशियंस कम हियर फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया टू परफॉर्म एंड पे होमेज टू तानसेन। म्यूजिशियंस पूरे देश से आते हैं इंडिया के ताकि वो यहाँ पे परफॉर्म और होमेज दे सके तानसेन को। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में चैप्टर आ गया होगा। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइजेस को डिस्कस करेंगे और आपको आगे पढ़ाएंगे इसके। ठीक है बच्चों, थैंक यू।